کہ ہم نے اپنی حقیقت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی ایمان کی روشنی میں عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی ایمان کی روشنی کے بغیر چلنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ایمان کی روشنی کے بغیر راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی اندھیرے میں کوئی نکلے اور جا کر کے اس کے بعد روشنی بھی نہ ہو، وہ راستہ بھی پا جائے، یہ شاذ و نادر، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی پہنچ جائے راہ راست تک۔ اندھیرے ہیں، ظلمت ہے، گمراہی ہے، ان ساری چیزوں میں ایمان ایک نور ہے، ایمان ایک روشنی ہے، ایمان ایک چراغ ہے۔ اس چراغ کو لے کر کے ہم بڑھیں گے آگے، اس چراغ کو لے کر کے کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد بھی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پریشان ہونے سے بھی بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ سارے حالات سے بھی ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن ہمارا حالات یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، چاہے شریعت کی نافرمانی ہو جائے، چاہے اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑایا جائے، جنازہ نکالا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ پھر قرآن بھی للکار کر رہا ہے، للکار کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے وہ لوگ جو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو یاد رکھ لیں یہاں مرضی کی زندگی اللہ تعالیٰ دے تو دے گا، لیکن جب یہاں سے دوسری دنیا کی طرف ہمارا سفر ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے زندگی گزروائیں گے۔ اور اس دنیا میں رہ کر کے ہم نے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اور پیدا فرمایا، اس مقصد کے تحت ہم نے زندگی گزاری، اس مقصد کو پورا کیا، تو ہمیں روز محشر میں کہا جائے گا کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی جی لے، اپنی مرضی کے مطابق جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا، اپنی مرضی کے مطابق جس عیش و آرام کی تیری چاہت ہے وہ مانگ لے، تجھے مل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس دنیا کے اندر ہم تمام کو اس دنیا کے اندر زندگی جب تک اللہ تعالیٰ نے دی ہے تب تک اپنے رب اور رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہوگی، اپنے رب اور رسول کی ماتحتی میں زندگی گزارنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ ہمارے سارے طریقے بیکار ہو گئے ہیں، ہمارے سارے طریقے ہم سے چھوٹ گئے ہیں، ہم نے بالکل پسے پشت ڈال دیا ہے سارے طریقوں کو، بس اپنی مرضی کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ کیوں کہ فجر میں ابھی ٹھنڈی کا زمانہ آ رہا ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی، پانی ٹھنڈا ہے، بہت سارے بہانے ہیں، ٹھنڈی لگتی ہے، لیٹ سے پڑھ لیں گے۔ بھائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے، وقت پر آپ نہیں پڑھیں گے، پھر وقت پر آپ چاہیں گے کہ ہمیں اچھی خاصی روزی مل جائے، کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر پریشانی کا سامنا تو بدرجہ اولا کرنا پڑے گا۔ آج اگر ہم ایمان کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، آج اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو یاد رکھیں حالات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیچ و تاب کے ساتھ ہمیں دے دے گا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی کیا کرنا ہے، کیسے آگے چلنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ حالات بنا ہوا ہے کہ بھائی ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پریشان ہونے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ یہ بندہ یہ بندی کیسے آگے بڑھ رہا ہے، یہ بندہ کیوں آگے جا رہا ہے۔ حالانکہ صحابہ کے زمانے میں، صحابیات کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بھائی لوگ ایک دوسرے کو ان باتوں میں، ان معاملوں میں دیکھ کر کے جلتے تھے جس میں اللہ کے رسول کی محبت ملے، جس میں اللہ کی محبت ملے، اللہ کی عبادات ہوتی۔ اللہ کی عبادات میں کوئی اگر 10 پارے قرآن شریف پڑھتی تو دوسرا دیکھ کر کے جلتی کہ ہاں یہ 10 پارے پڑھ لی اس نے، میں 15 پڑھ کے دکھاؤں گی۔ اس نے آج 10 نفلیں پڑھی ہے، میں 20 پڑھ کے دکھاؤں گی۔ اس نے آج 12 تہجد پڑھی ہے، میں 20 پڑھ کے دکھاؤں گی۔ اس نے آج 5 6 7 8 رکعتیں پڑھی ہے، میں 12 پڑھ کے دکھاؤں گی۔ اس طریقے کا مقابلہ چلتا تھا۔ آج ہمارے یہاں مقابلہ کیا ہے؟ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مقابلہ کیا ہے کہ بھائی اگر 2 بھینس ہے میرے پاس تو 4 کیسے ہو جائے، اگر 2 گائیں ہیں تو 3 کیسے ہو جائے، ہمارے پاس 1 دکان ہے تو 2 کیسے ہو جائے۔ یہ اس چکر میں ہم پھنسے رہتے ہیں، ہر وقت یہی دنیا۔ وہ امیر صاحب نے قصہ نہیں سنایا تھا، اگر ہم نے بچوں کو اچھی تعلیم دی، اچھا بنایا، دینی تعلیم سے وابستگی رکھا، بچوں کا اچھی تعلیم دی، تو یاد رکھیں یہ بچے ہمارے لیے آخرت کے نجات کا سبب بھی بنے گا۔ یہ بچہ
और अगर हमने दुनियावी तालीम दी है, दीनी तालीम से कोई मतलब ही नहीं रखा है, तो याद रखें वो दिन दूर नहीं, फिर कब मरेंगे, कब चूहा आपका नाक और कान काट के ले जाएगा पता तक नहीं चलेगा। एक ही बेटा था ना उस शख्स का, सुनाया था ना, याद है ना आप लोगों को वाकया। इसलिए अगर अच्छी तालीम दी होती, दीनी तालीम दी होती, दीन से वाबस्तगी में रखा होता अपने बच्चे को, तो ये दिन देखना ना पड़ता, ये हालात देखने ना पड़ते अपनी अहलिया का। आज हमें दीन से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं। दीन की जरूरत कब? जब कोई मर जाए तब कुरान खानी करवा लेंगे, जब कोई मर जाए तब 2, 4, 5 दिन तक नमाजें पढ़ लेंगे, जब कोई रमजान आ जाए तब पढ़ लेंगे। हमने दीन को अपनी जरूरत के मुताबिक समझ लिया है और अपनी जरूरत के मुताबिक दीन को चलाने की कोशिश की है। याद रखें, ये शरीयत किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं चलने वाला है। ये शरीयत के मुताबिक से जो चलेगा वो कामयाब होगा। अगर शरीयत के मुताबिक नहीं चले तो याद रखें, नाकामी नामुरादी हमें सामने आएगी, हमारे कदमों को चूमेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। इन पर जो किताब नाजिल हुई थी वो जबूर नामी किताब नाजिल हुई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक मर्तबा, ये वाकया इस वजह से सुना रहा हूं ताकि मुआशरे से गंदगी को निकाल फेंके। मुआशरे से एक दूसरे को टांग खींचने के बजाय हम एक दूसरे का सपोर्ट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए दुआएं करने की कोशिश करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पूरी लश्कर के साथ कहीं निकल रहे थे, अपने पूरी लश्कर के साथ कहीं निकल रहे थे तो एक चूंटी ने देखा। चूंटी जाकर के अपने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर रहे हैं, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ए चूटियों की जमात, ए हमारे कबीले वाले, सुन लो कान खोल करके, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ। सुलेमान और उसका लश्कर आ रहा है, उसके पैरों के नीचे दबे जाओगे, कुचले जाओगे, पीसे जाओगे, उन बेचारों को पता नहीं चलेगा, लाशूरी के आलम में रहेंगे। क्योंकि एक चूटी की कदो कामत क्या होती है और एक इंसान की कदो कामत क्या होती है वो हमें पता है। हमारे पैरों के नीचे चूटी आ जाए पता नहीं चलता है। चूटियों ने अपनी हमराहों का, अपनी जमातों का, अपने कबीले वालों का ख्याल रखा और पूरे कबीले में ऐलान करके सबको घर में दाखिल फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला को यह बात इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कुरान करीम के 19वें सिपारे के अंदर अल्लाह ताला ने चूटी के नाम से सूरह नम्ल करके एक पूरी सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दी। क्या हम मुसलमान, हम इंसान अगर इस तरीके की भाईचारगी पैदा करेंगे, इस तरीके से बिछड़े हुओं को उठाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से बिछड़े हुओं को मिलाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से जो पीछे हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो परेशान है उनकी परेशानी को दफा करने की कोशिश करेंगे, जो मजलूम है उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, जो परेशान हाल है, बेवा है, बेसहारा है, उनका सहारा बनने की कोशिश करेंगे, क्या अल्लाह तबारक व तआला को हमारी अदा पसंद नहीं आएगी? क्या अल्लाह तबारक व तआला हमें नहीं नवाजेंगे? लेकिन हमने इन सारी चीजों को बिल्कुल बहुत दूर, हमने कोसों दूर छोड़ दिया है। हमने दूर दूर तक हमें ये हालात नजर नहीं आते हैं कि भाई इंसान का दर्द क्या होता है, इंसान के दर्द को समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को 2 मकसद के लिए पैदा फरमाया। एक तो ये कि इबादत, दूसरा ये कि आपस में भाईचारगी, आपस में मोहब्बत, आपस में अखुवत, आपस में हमदर्दी, आपस में एक दूसरे का साथ दे करके चलना, ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे चाह करके हमें पैदा फरमाया है। वरना इबादत के लिए फरिश्ते बहुत सारे हैं, वरना इबादत के लिए फरिश्ते बहुत सारे हैं। अगर हम अपने भाइयों को लेकर के नहीं चलें, अपने हमराहों को लेकर के नहीं चलें, अपने हमचोलियों को लेकर के नहीं चलें, आगे आप अकेले चले जाएं और कामयाबी मिल जाए तो ये कामयाबी नहीं, ये नामुरादी है, ये नामुरादी की बात है। आज हमारे अंदर
इतनी सारी बीमारियां पाई जाती है, इतने सारे बेकार बातें पाई जाती है, अगर उसको बयान करने जाए तो इतना ज्यादा वक्त चाहिए। कितने सारे हमारे अंदर जो बेकार बातें हैं, लघु बातें हैं, लहव लईब हैं, उन सारी चीजों से हमें निकलना होगा, उन सारी चीजों को हमें निकाल फेंकना होगा। एक तरफ से दो चार चंद बातें मैं गिना देता हूं। सबसे पहले हमारे अंदर से ये बीमारी निकालनी होगी कि एक दूसरे के खिलाफ किसी का कान फूंकना, किसी के खिलाफ किसी को भड़काना, किसी के खिलाफ साजिशें करना, किसी के खिलाफ झगड़ा लगवाना, किसी के घर को तोड़ना, किसी रिश्ते को तोड़ना, किसी रिश्ते में भंग पैदा करना, किसी जुड़े हुए को दो टुकड़ों में तकसीम कर देना, ये सारी बीमारियां हमारे अंदर पाई जाती हैं। अगर हम इन सारी बीमारियों से पाक हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमें मनचाही जिंदगी आखिरत में अता फरमाएंगे। अगर इन सारी बीमारियों को लेकर के हम दुनिया से गए तो याद रखे फिर रब का पकड़ बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उसकी दारोगिरी, उसकी पकड़ बड़ी अलम रसा है, बड़ी तकलीफ दे है। हमें तो पता नहीं चलता है, हम कह देते हैं ना आसानी से कि भाई कब्र का हाल मुर्दा जाने, क्या कुछ नहीं होने वाला है, दफना के आएंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, पेट फटेगा, मिट्टी हो जाएंगे। हालांकि आखिरत की मनाजिलों में, आखिरत की जितनी मंजिलें हैं उन तमाम मनाजिलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे खतरनाक और सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। जो बंदा यहां दुनिया के अंदर रब की फरमाबरदारी करके, रब रसूल की मान करके जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से जाएगा, या कोई बंदी जाएगी, तो कब्र में जाते ही कब्र उसकी आओ भगत करेगी, कब्र उसकी खुशामदीद करेगी, कब्र उसकी वेलकम करेगी और कहेगी तू जमीन के ऊपर मुझे बड़ा प्यारा लगता था, तू जमीन के ऊपर मुझे बड़ा प्यारा लगती थी, तू जमीन के ऊपर सबसे बेहतर लगती थी, आजा आज मेरे सलूक तू देखेगी, मैं तेरे साथ कितना अच्छा सलूक करती हूं। जमीन कब्र ये पुकारेगी। और अगर कोई बंदा रब रसूल की नाफरमानी करके जाएगा, या कोई रब रसूल की नाफरमानी करके जाएगी, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार के करके जाएगी, तो याद रखे वो कब्र खतरनाक गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगा उसके लिए। अल्लाह के रसूल, मैं बार बार मिसाल दे करके बता करके कहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से फरमाया कि भाई कोई नाफरमानी करके जाता है तो कब्र उसको इतना दबोचती है कि पसली का जो हड्डी है वो एक दूसरे में इस तरीके से घुल करके इतना उसका जिस्म हो जाता है। ये कब्र की मंजिलों की मैं बात कर रहा हूं। कोई नेक इंसान इस दुनिया से जब जाता है तो सबसे पहले उसके रूह आसान तरीके से खींची जाती है। इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बिल्कुल आसानी से उसका रूह खींचता है, बिल्कुल आसानी से। फिर उसके रूह को अच्छी तरीके से इज्जत और एहतराम के साथ आसमान पर ले जाया जाता है, जहां फरिश्तों का कोहराम होता है, फरिश्ते खुशी मना रहे होते हैं, फरिश्तों में एक हंगामा होता है कि फला बंदा बड़ा अच्छा था, आ रहा है, उसके लिए हम बेताबो बेकरार थे, अब वो आ रहे हैं, हम खुशियां इस चक्कर में हम खुशियां मना रहे हैं, इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं। अंदाजा लगाए ना, जिसके रूह को इतना इज्जत और एहतराम दिया जाए, जिसके रूह को इतना इकराम किया जाए, जिसके रूह को फरिश्ते की खुशी दी जाए, तो उसके जिस्म, उसकी बॉडी को कितना खुशी मिलेगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। और हम आसान जुबान में कहते हैं ना, जैसा रूह वैसा फरिश्ता, जैसा रूह वैसा फरिश्ता। अच्छे अमाल करेंगे तो अच्छा फरिश्ता, यानी अच्छी तरह फरिश्ता तो वही है, फरिश्ता बदलता नहीं है। मौत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दे रखा है, वही आता है सिर्फ मौत का रूह कब्ज करने के लिए। लेकिन जो जैसा होगा, जिसके अमाल जैसे होंगे, जिसके करतूत जैसे होंगे, जिसके नेक अमाल ज्यादा होंगे, उसके लिए वो फरिश्ते उतना ही बेहतर और बन सवर कर खूबसूरती में आता है, ताकि उसको परेशानी ना हो। आपने देखा होगा जिसका रूह कब्ज होता है, रूह कब्ज होते वक्त वो बड़ा परेशान रहता है, इधर करवट लेता है, उधर करवट लेता है, रूह निकलती नहीं है जल्दी, कभी गला खींचता है, कभी सीना तानता है, कभी पैर खींचता है। ये सब क्या है? यूं लिखा है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि इंसान के मौत के वक्त, इंसान को मरते वक्त अगर उसकी जुबान में बोली दे दी जाए तो उसके